Hello friends, welcome to my channel Prasad Joshi Astro Universe. Today we are going to talk about the Gemini Ascendant and the impact of the different planets on the first house in the Gemini Ascendant. Now Gemini is an ascendant that is ruled by Mercury. All the signs that fall in the quadrant, that is in the first house, fourth house, seventh house and 10th house, are ruled by the signs that are dual in nature, and therefore such individuals always face a bipolarity in taking the decisions that are associated with the areas that are represented by these four houses. Now, Gemini is a pleasing sign whenever it falls in the ascendant, and it gives an attractive appearance to the person. The native is usually tall, they have large hands and feet, they are usually lean and thin in appearance, and most of the times have very beautiful eyes and a sharp nose. The intelligence and the pleasant demeanor that these people have make them a very attractive company in the social circles. These people also display all the traits that are associated with the Mercury, that is, the diplomatic negotiations is something that these people are skilled in. They also have expertise in trade practices and a talent for dramatic performances. They also have an excellent ability to conceal their emotions. They have ambivalence as their outstanding feature. A Gemini ascendant person is often bashful and is very selective in speech. They like to meet people, also travel extensively and acquire knowledge. They also have a special ability to influence people and especially delights in having a communication or a discussion with the members of the opposite sex. As stated earlier, these people are bipolar and have a dual personality due to the inherent nature of Mercury as an ascendant lord. But this also gives them a flexible and an adaptable nature. These people are very, very moody. So, depending on whether they are serious or they are in a joyful mood, their circumstances also fluctuate. The success in their lives depend on intuitively understanding the other people emotions and thoughts and then acting accordingly to influence them. This capacity to interpret the thoughts and feeling of others also enables them to become a very successful writer or a novelist, and as such you will find a lot of people who are in Gemini ascendant who have taken up writing as the profession. Amongst all the planets, Mercury has an affinity with Venus and Saturn, and it considers them to be their friends. So, Venus and Saturn are favorable to the Gemini ascendant person. Sun and Jupiter produce adverse result. Moon is a owner of the second house and is considered as a killer planet for the Gemini ascendant. Now let us look at what kind of a results will be produced if the planets are present in the first house. We will start with Sun. Now remember that for these planets to give their complete impact on the first house, they should neither be in conjunction with any planet nor they should be aspected by any other planet, otherwise the result is bound to change. So when Sun is present in the first house for Gemini ascendant, it does not really create a favorable impact because it may cause a person to become bald, and the presence of Sun in the first house often gives them problems as far as their health is concerned. They will fall ill many times because of fever. But presence of Sun here, again, it's a combination of Sun and Mercury, as Mercury is the sign lord. It makes them well versed in astrology and gives them an inclination towards the occult subject. This knowledge does not really ensure that the native is going to have a happy family life or a marital bliss. If Moon is present in the first house for Gemini ascendant, then they have a very beautiful physical body. Their eyes are very attractive and they have an understanding of the feeling and thoughts of other people. The native is also very skilled as far as the relationships are concerned and are very attracted towards the opposite sex, which leads to a very agreeable married life, though it does not really guarantee that the person is going to remain faithful to their partner in the marriage. The moon in Gemini may also tend a person towards same gender attraction, but this also depends on the position of Venus in the horoscope. Since moon is a cold kind of a planet, so the native also suffers from cold and cough, and
often falls ill. So presence of moon does not really give any kind of a health benefit to the person. When Mercury himself becomes the ascendant lord, then it shapes an individual who is greatly desired for his social networking and skill, intellectual attainment, scientific learning, and the artistic talent and the affluent conditions in which these people are born in. The youthful appearance is something that is very much associated with Mercury in the ascendant. So, such people, whenever Mercury is posited alone or is in conjunction with Venus in the first house, then it kinds of gives a sensuality to the face of the person, and it also makes them look younger than what their actual age is. An individual Venus without any conjunction or aspect from any other planet provides a person the diplomatic or the negotiating acts, and you will see such people often getting associated with the government or large corporate houses to negotiate on their behalf, of course, in the chosen line of the work. Such people are very fond of their mothers and they consider their mother as their aspiration, but this position of Venus also makes them prone to different kind of vices. These people are very fond of romance, but they remain unsteady in their relationship. The trouble often comes from their unbridled sensual urges, which they are unable to control. If Mars is present in the first house, then it has an adverse influence on the Gemini born individuals because Mercury and Mars are not friends. So, such people are able to make money, but they often become involved in litigation because Mars also rules the sixth house, and the presence of sixth house lord in the first house ensures that person gets into feuds or quarrels throughout their lives. Such people are usually intolerant of the thoughts of other people. They are considered very stringy and they don't make friends very easily. Such people also suffer from blood disease and nervous exhaustion, which is a common condition when a fiery planet like Mars gets involved with Mercury in some combination. If Jupiter is present here, then it creates a graceful appearance and it favors external condition in life, but it does not give the native inner satisfaction or peace of mind. If Saturn is present in the first house, then the person is usually tall in appearance, but Saturn here makes a person unhappy, miserly. The individual suffers from family problems and respiratory troubles. If Rahu is present here, then such people tend to hide their thoughts from other people, and other people also find it very difficult to trust such individuals. This Rahu is also afflicted by Mars or by Saturn, either through conjunction or these planets aspecting Rahu. Then such person also leans towards crime and perversity. It depends on which of the planets are aspecting Rahu when it is placed in the ascendant. Such people also as an individual have exaggerated desires or have a very high libido level. When Ketu is present in the first house, then it gives a very unusual kind of an appearance to the person. Such people are usually very short or their appearance is as such that they stand out from the crowd. Ketu here also makes oneself detached from social life, and such people usually prefer to stay alone. So these are the results of different planets when they occupy the first house in the Gemini ascendant. You have to consider the fact that these are the results that are given by the planets when they are alone in the first house. That is neither conjuncting with any other planet nor they are getting aspected by any other planet. If you have liked this video, please do subscribe to my channel एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रसाद जोशी अपने चैनल प्रसाद जोशी एस्ट्रो यूनिवर्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं मिथुन लग्न की, ग्रहों का प्रभाव जब भी वो प्रथम भाव में बैठे हुए रहते हैं मिथुन लग्न के लिए। देखिए, मिथुन लग्न जो होता है उसका जो स्वामी होता है वो बुध होता है, और बुध ही उसके केंद्र स्थानों को भी रूल करता है, यानी कि पहले और चौथे भाव को। और जो बचे हुए हमारे डुअल साइंस हैं, यानी कि धनु और पाइसेस यानी कि मीन, ये राशियां भी केंद्र स्थान में ही पड़ती हैं। तो आप देखिए कि पूरा केंद्र स्थान में आपके द्विस्वभाव राशियां आ जाती हैं, जिसे हम डुअल साइंस भी कहते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ दिक्कत ये आती है कि ये कभी भी कोई भी निर्णय लेने से पहले दुविधा में पड़े रहते हैं। दो दिशाओं में से कौन सी दिशा हमें चूज करनी चाहिए, इसमें इन लोगों के साथ हमेशा ही समस्या होती है। चाहे वो निर्णय
खुद से रिलेटेड हों या घर से रिलेटेड हों, अपनी स्पाउस से या अपने बिजनेस में, अगर ये बिजनेस करते हैं तो कि क्या निर्णय ले, कौन सी दिशा में जाएं। और प्रोफेशन में भी ये लोग इसी तरीके से स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि सारे साइंस जो हैं इनका स्वामित्व द्विस्वभाव ग्रहों के पास है, इसीलिए इनको ऐसी समस्या आती रहती है। अब जो मिथुन लग्न वाला व्यक्ति होता है, यह बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का होता है। इस तरह के जो लोग होते हैं वो काफी ऊंचे होते हैं, इनके हाथ पांव भी काफी आपको देखेंगे नॉर्मल व्यक्ति से बड़े होते हैं, दुबले पतले होते हैं और दिखने में जनरली काफी सुंदर होते हैं। ये लोग बातों से सामने वाले व्यक्ति को रिझा सकते हैं, और इसीलिए आप देखिए कभी भी जब ये सोशल सर्कल में जाते हैं तो ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके आसपास भीड़ जमा हो जाती है, क्योंकि लोग इन्हें बात करना पसंद करते हैं और इन व्यक्तियों को स्वयं भी दूसरों से बात करने का बहुत शौक होता है। चूंकि यहाँ पर बुध की ही राशि आती है, तो ऐसे लोग जो हैं वो नेगोशिएशंस में बड़े उस्ताद होते हैं। आप कभी भी देखिएगा, कोई भी ऐसे आपको नेगोशिएटर्स दिखेंगे, चाहे आप दुकान पे सामान खरीदने जाएं या आप किसी कंपनी में बैठे हो, कोई नया बिजनेस लाने की बात हो रही हो, तो भी आप देखिए कि भावताव करने की बात जहां पर भी आती है या किसी भी और तरह का नेगोशिएशन करने की बात आती है, तो ऐसे लोग इन चीजों में बहुत अच्छे होते हैं। दूसरा इनका जो ये होता है, क्योंकि शुक्र की राशि पड़ती है पांचवें भाव में, तो इन लोगों को थिएटर, ड्रामा, ये सब का भी इनमें काफी टैलेंट होता है। जो भी स्टेज आर्टिस्ट होते हैं वो भी आपको काफी सारे मिथुन लग्न के मिलेंगे, और शुक्र का संबंध या तो पांचवें घर से या पहले घर से उनके उसमें आता हुआ दिखेगा। ये लोग बातें करने में भी बहुत अच्छे होते हैं, और अगर बुध की स्थिति अच्छी होगी तो आप इनको बहुत अच्छा जो है ओरेटर देख सकते हो। ये लोग स्पीचेस वगैरह देने में भी बहुत अच्छे होते हैं, और ये अपनी बातों से ही सामने वाले व्यक्ति को मना लेते हैं, उनके ऊपर प्रभाव डाल देते हैं। जैसा हमने पहले बताया था कि ये डुअल पर्सनालिटी होती है इन लोगों की, तो ये काफी अपनी जो आसपास का जो भी इन्वायरमेंट होता है उससे तालमेल बिठा लेते हैं, लेकिन इनके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा होते हैं, और जैसा इन लोगों का मूड बनेगा उसके हिसाब से आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं। इनके जो जीवन में सफलता होती है ये बहुत हद तक इस बात पे निर्भर करती है कि ये सामने वाले व्यक्ति के विचारों को कितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसी के हिसाब से जैसा सामने वाला व्यक्ति सोचता है उस हिसाब से अपने आप को ढाल के उसको प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं। और इनकी ये जो क्षमता होती है कि ये सामने वाले व्यक्ति के ख्याल पढ़ लेते हैं, ये इनको एक बहुत अच्छा लेखक भी बनाती है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि बुध लग्न है, वो या तो नॉवेलिस्ट होते हैं या फिर बहुत अच्छे लेखक होते हैं। तो अभी हम एक एक करके देखते हैं कि जब प्लैनेट प्रथम भाव में बैठता है मिथुन लग्न के लिए तो उसका क्या क्या प्रभाव आ सकता है व्यक्ति के जीवन पे। पहले हम शुरुआत सूर्य से करते हैं। देखिए सूर्य तो सारे ग्रह मालिका का राजा है, तो जब सूर्य यहाँ पर बैठता है तो वो व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी करता है। यहाँ पर अगर सूर्य बैठता है तो यह व्यक्ति को गंजा बना सकता है, और आप देखेंगे कि ऐसे कई व्यक्तियों को बार बार जो है वो बुखार आने की समस्या रहती है, सर दर्द की समस्या रहती है, क्योंकि सूर्य कभी भी लग्न में बैठ के व्यक्ति की सेहत अच्छी नहीं रहने देता। ऐसे व्यक्ति, चूंकि सूर्य बुध का कनेक्शन बन जाता है, सूर्य प्रथम भाव में बुध की राशि में बैठा है, तो ऐसे लोग ज्योतिष्य में या गूढ़ शास्त्र को समझने में बहुत इच्छुक रहते हैं। ये नॉलेज अर्न करने के पीछे इतना पड़ जाते हैं कि उसके चक्कर में इनकी जो फैमिली लाइफ होती है उस पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर चंद्र यहाँ पे बैठा होता है तो यह व्यक्ति को बहुत आकर्षक व्यक्तित्व का बनाता है। व्यक्ति की आंखें बहुत सुंदर होती हैं, और ये लोग सामने वाले के जो विचार होते हैं या इमोशंस होते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये लोग काम शास्त्र में भी बड़े निपुण होते हैं और आसानी से जो है दूसरे व्यक्ति को प्रभावित कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के लोगों की शादियां होती हैं तो उसमें आप सामने वाले व्यक्ति के प्रति फेथफुल रहेंगे कि नहीं, इसमें हमेशा ही डाउट रहता है। यहाँ पर चंद्रमा की उपस्थिति यानी कि यह लोग कफ आदि समस्याओं से भी सफर कर सकते हैं, क्योंकि जो चंद्र होता है ये ठंडा ग्रह होने की वजह से इनको कफ संबंधी समस्याएं देता है, और ऐसे लोग हमेशा बीमार पड़ते रहते हैं। अगर बुध यहाँ पर बैठा होता है तो ये व्यक्ति को सोशल सर्कल्स में बहुत प्रसिद्ध बनाता है। ऐसे लोगों को पार्टीज में जाना, लोगों से मिलना जुलना बहुत अच्छा लगता है। विचारों का आदान प्रदान,
कोई इंटेलिजेंट चीजें डिस्कस कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट की बातें हो रही हैं, ये सब इनको बहुत पसंद आता है। बुध को चूंकि राजकुमार का दर्जा दिया गया है, तो ऐसे लोग जब बुध प्रथम भाव में होता है तो अपनी उम्र से भी छोटे लगते हैं। और अगर यहाँ पर शुक्र का भी प्रभाव आ जाता है लग्न पे, तो ये बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के लोग होते हैं और दूसरे लोग इनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। जब शुक्र अगर प्रथम भाव में बैठा हुआ होता है, ऐसा देखा जाता है कि यह व्यक्ति बाहर से ही ज्यादातर पैसा अर्जित करता है, क्योंकि 12वें भाव में भी शुक्र की राशि पड़ती है। तो ऐसे लोगों का बाहर के लोगों से यानी फॉरेनर्स के साथ संबंध जरूर आता है। ऐसे लोगों को चूंकि पंचम भाव का स्वामी प्रथम भाव में भी बैठता है, तो इन लोगों का शिक्षा आदि क्षेत्र में भी बड़ा रुचि रहता है और ऐसे लोग बुद्धि का प्रयोग करके काफी पैसा बनाते हैं। ये लोग अपनी माता के प्रति भी बहुत श्रद्धा का भाव रखते हैं, उनको एज अ इंस्पिरेशन की तरह देखते हैं। लेकिन शुक्र की उपस्थिति यहाँ पे व्यक्ति को व्यसन आदि में डाल देती है। शराब हो गया, सिगरेट हो गया, ये सब चीजों में ये लोग बहुत उलझे रहते हैं। इन लोगों को काफी अट्रैक्शन रहता है अपोजिट जेंडर की तरफ, लेकिन ये लोग किसी रिलेशनशिप में फेथफुल रहेंगे कि नहीं ये कह पाना बहुत मुश्किल होता है। और इन लोगों के साथ समस्या ये होती है कि ये आकर्षण इनका शुक्र यहाँ प्रथम भाव में होने की वजह से इतना ज्यादा हो जाता है कि ये कई बार इस चक्कर में बदनाम हो जाते हैं। देखिए, अगर मंगल यहाँ पर उपस्थित रहता है तो मंगल और बुध की तो दुश्मनी रहती है। तो यहाँ पे मंगल बैठ के क्या करेगा, छठे भाव का मालिक प्रथम भाव में बैठ जाएगा तो व्यक्तियों को अलग अलग तरह के झगड़ों में फंसा देता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा देता है, या लोग आके इनके ऊपर दावा ठोक देते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, दूसरे लोगों के विचारों का आदर नहीं करते, बहुत कंजूस होते हैं और दोस्त भी बहुत आसानी से नहीं बनाते हैं। क्योंकि मार्स एक फायरी प्लैनेट है, तो यहाँ पर इन लोगों को जब मंगल प्रथम भाव में बैठा होता है तो ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं। और बुध की राशि में होने की वजह से ये लोग जो है वो नर्वस एग्जॉशन से भी सफर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंगल अगर उपस्थित होगा अकेला, न यूतो न दृष्टो, तो कुछ खास अच्छा परिणाम वालों मिथुन लग्न वालों के लिए देता नहीं है। गुरु अगर यहाँ पर उपस्थित होगा तो ऐसे लोगों का जो अपीयरेंस है वो बहुत ग्रेसफुल होता है, और इनको आप देखेंगे महादशा के ऊपर भी ये डिपेंड करता है, लेकिन इनको जो बाहर की कंडीशंस होती हैं वो बड़ी फेवरेबल होती हैं, यानी लोग आके इनको सपोर्ट कर देते हैं ये जो भी पाना चाहें उसके लिए। लेकिन गुरु की उपस्थिति यहाँ पे व्यक्ति को जो है वो मेंटल सेटिस्फैक्शन नहीं लेने देती। ये गुरु के यहाँ पर होने का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है मिथुन लग्न के लिए। अगर शनि यहाँ पर बैठा होगा तो ऐसे लोग आमतौर पे काफी लंबे दिखेंगे आपको, ऊंचे होते हैं, लेकिन ये लोग भी खुश नहीं रह सकते। शनि तो प्रथम भाव में वैसे भी व्यक्ति को कंजूसी बनाता है, लेकिन यहाँ पर शनि व्यक्ति को पारिवारिक समस्याएं देता है, क्योंकि वो सीधा सातवीं भाव को देख रहा होता है, तो बीवी से भी अनबन करवाता है और व्यक्ति को रेस्पिरेटरी ट्रबल्स यानी सांस से रिलेटेड तकलीफ भी दे सकता है। अगर राहु यहाँ पर बैठा होता है तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपने मन की बात छुपाता है। राहु यहाँ पर होता है तो लोग बड़े वाकपटु होते हैं, बोलने में बड़े चतुर होते हैं। राहु वैसे भी मिथुन राशि में बड़ा कंफर्टेबल होता है, तो बातें करने में बड़े ये लोग तरबेज होते हैं, किसी को भी बातों से ही फांस सकते हैं। तो अगर यहाँ पे मंगल और शनि की भी दृष्टि पड़ रही हो प्रथम भाव में जब राहु बैठा हो उसके ऊपर, तो आप देखेंगे कि ऐसे लोग जो है अपराध की तरफ मुड़ जाते हैं या बुरी संगत में पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से भी ये लोग अपना बहुत नुकसान करवा लेते हैं। अगर केतु प्रथम भाव में बैठा होता है तो ऐसे व्यक्तियों को आप देखेंगे कि इनको फ्यूचर का आभास पहले ही हो जाता है, तो जिसे हम लोग साइकिक कहते हैं, जो आगे आने वाली चीजों का अंदाजा पहले ही लगा देते हैं, उस तरह का यह व्यक्ति को बनाता है। ये लोग फ्यूचर को काफी अच्छे से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। केतु यहाँ पर होने की वजह से ऐसे लोगों का जो पहनावा होता है या बातें करने का तरीका होता है ये भी बहुत अलग तरह का होता है। तो आप अगर इस तरह के व्यक्तियों से मिलेंगे तो ये आपको बहुत लंबे समय तक याद रहते हैं, अगर एक भी बार मिले हो तो भी। इतने ये लोग अलग होते हैं बाकी लोगों से। अभी हमने सारे ग्रहों का प्रभाव देख लिया प्रथम भाव के ऊपर मिथुन लग्न के लिए। ये ग्रह यहाँ पर पूर्ण प्रभाव देंगे अगर यूतो और दृष्टो दोनों ही नहीं है। तो अगर इनको कोई प्लैनेट देख रहा है या ये किसी के साथ युति कर रहे हैं तो इसका परिणाम फिर बदल जाएगा उस ग्रह के स्वभाव के अनुसार। नहीं तो आपको अधिकतर यही परिणाम देखने को मिलेंगे जब ये ग्रह प्रथम भाव को ऑक्युपाई करेंगे मिथुन लग्न के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।